ناول فیری ٹیل نیو ایپیسوڈ۔ تم چاہے کتنی بھی آزاد ہو جاؤ، رہو گی مردوں کے نیچے ہی، فوزان تن سے بولا، جس پر ماریسا جھٹکے سے اپنا بازو چڑھاتی پورے زور سے کونیز کے پیٹ میں مار دیا تھا، جس پر فوزان درد سے دورا ہوا تھا اور اس کی گرفت کمزور ہوئی تھی، جس کے سبب اگلے ہی پل ماریسا آزاد ہوئی تھی۔ نہ جانے اتنی طاقت کہاں سے آتی ہے اس میں، حالانکہ صبح سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ غلط فہمی ہے تمہاری، وہ وقت اور تھا جب تم مرد عورتوں کو کمزور اور لاچار سمجھ کر طاقت کے بلبوتے پر اپنا غلام سمجھتے تھے، مگر اب ایسا نہیں ہے۔ عورت دو سبب سے مرد کی غلامی کرتی ہے، ایک خوف اور کمزور ہوتی ہے اور ایک دوسری وجہ محبت کی ہوتی ہے۔ وہ خود کو اپنے مرد کی غلامی میں دے دیتی ہے اور میرے ساتھ دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے اپنی خوش فہمی ختم کر لو۔ محبت تو میں تم جیسے شخص سے مر کر بھی نہیں کروں گی، اور تم اتنے طاقتور تو ہو نہیں کہ مجھے زیر کر کے اپنا غلام بنا سکو، ماریسا طنز سے جتے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ ماریسا کا ہر جملہ فوزان کو تلملا اٹھنے پر مجبور کر رہا تھا، مگر آخری جملہ کسی زہر میں چبھی برچی کی طرح پوری طاقت سے اس کی مردانہ آنا پر پڑی تھی، جس کے سبب وہ بلبلا اٹھا تھا۔ کیا واقعی تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں تمہیں زیر کر سکوں؟ تو چلو میں تمہیں آج اپنی طاقت کا اندازہ دلا ہی دیتا ہوں، دہکتے ہوئے لہجے میں کہتا وہ فوزان کی سیاہ آنکھیں سرخ ہوتی ہوئی جیسے دہک اٹھی تھی۔ وہ غصے شدید میں آیا تھا، اس کی مردانہ وقار اور انا پر آ ٹھہری تھی، اسے ثابت تو کرنا ہی تھا۔ آگے نہ آنا، گھٹیا آدمی۔ ماریسا کا دماغ اس کا اگلا قدم سوچ کر جھنجھلا اٹھا۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ فوزان اس طرح کا کچھ کرنے کا سوچے گا بھی۔ بات دو بدو لڑنے کی ہوتی تو وہ لڑ کر جیت جاتی، بات جہاں فوزان لے کر گیا تھا اسے سوچ کر اس کے اندر کی لڑکی سہمی تھی۔ کیا کروں تمہیں اپنی طاقت کا پروف دینے کے لیے مجھے اپنی اوقات گرا کر تمہارے لیول پر آنا پڑا، فوزان اس کی جانب بڑا کمینگی سے بولا تھا۔ وہ ماریسا کے چہرے پر پہلی گھبراہٹ کو پہچان گیا تھا جو وہ پہلی مرتبہ اس کے چہرے پر نظر آئی تھی۔ میری اجازت کے بغیر تم مجھے چھونے کا سوچنا بھی مت، ماریسا اپنے قدم پیچھے لیتی ہوئی اسے جیسے وارن کر رہی تھی۔ اجازت؟ فوزان مذاق اڑانے والے انداز میں بولا تھا۔ تم پوری کی پوری میری ملکیت میں ہو، انسان اپنی چیز استعمال کرنے سے پہلے سے اجازت تھوڑی مانگتا ہے، فوزان تحقیرانہ انداز میں بولا تھا۔ پھر تم جیسے انسانوں کو چاہیے کہ وہ ایک جیتی جاگتی عورت اور بے جان چیزوں میں فرق کر لے کہ دونوں برابر نہیں ہوتے، ماریسا کہتے ہوئے دیوار سے جا لگی تھی۔ کیا تم ڈر رہی ہو؟ فوزان نے مذاق اڑایا۔ نہیں، تمہیں وارن کر رہی ہوں کہ مجھے ہلکے میں مت لو، میں اتنی سر پھری ہوں کہ تمہیں گمان بھی نہیں ہے، ماریسا نے آپ کی مرتبہ ٹھنڈے لہجے میں کہا تھا۔ اچھا بھلا تم اب کیا کرو گی خود کو مجھ سے بچانے کے لیے؟ کیونکہ آج چاہے قیامت ہی کیوں نہ آ جائے، آج اپنی بیوی کی اکڑ توڑ کر ہی رہوں گا، میں اس سے بتا کر ہی رہوں گا کہ میں کتنا طاقتور ہوں، فوزان زہریلے لہجے میں کہتا ہے۔ اس کی جانب بڑھا تھا۔ وہیں رک جاؤ، ایک قدم بھی آگے مت بڑھانا، ورنہ کیا کر لو گے تم؟ فوزان بدستور اس کی جانب بڑھتے ہوئے اس کی بے بسی دیکھتے مزے لیتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ورنہ میں خود کو نقصان پہنچا دوں گی، کہتے ہوئے ماریسا اپنا داہنے ہاتھ میں دبے چھری کو فوزان کو دکھاتے ہوئے بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھا تھا، جس پر فوزان ٹھٹک کر رکا۔ وہ چھری کو دیکھ حیران ہوا تھا، نہ جانے اس نے کب کہاں سے اسے لیا تھا، یقیناً اس نے اپنے بندے ہاتھ بھی اس چھری کے ذریعے ہی آزاد کیے تھے۔ نہیں پلیز ایسا مت کرو، میں اپنے ارادے سے باز آیا، مجھے معاف کر دو۔ تمہیں لگتا ہے میں ایسا کہوں گا؟ تمہیں لگتا ہے کہ تم خود کو نقصان پہنچاؤ گے تو میرا دل تڑپ اٹھے گا؟ بلکہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تم مرو یا زندہ رہو، میں تو بس تمہاری یہ نام نہاد عقل اور گھمنڈ توڑتے دیکھنا چاہتا ہوں، فوزان استہزائیہ انداز میں کہتا ہے۔ اس کی جانب پھر قدم بڑھا گیا تھا۔ تم مجھے مرتا ہوا تو ضرور پاؤ گے، مگر ٹوٹتا ہوا اکڑ نہیں، ASP فوزان ذوالفقار، ایز یو وش، انتہائی سرد انداز میں کہتی بڑی بے رحمی سے چھری کا کٹ اپنی کلائی پر لگا دیا تھا، اور فوزان کے قدم حیرت اور صدمے کے باعث رکے تھے۔ وہ ششدر سا اسے دیکھ رہا تھا تو اسے محض ایک دھمکی سمجھا تھا کہ وہ اسے ڈرا رہی ہے، مگر وہ محض ایک دھمکی نہیں تھی۔ ماریسا کی اکڑ توڑنے کے ارادے بھول فوزان واقعی بھی ماریسا کی کلائی سے تیزی سے بہتا خون دیکھ تڑپ اٹھا تھا۔ یہ کیا کر دیا بے وقوف لڑکی، کیا تم پاگل ہو؟ فوزان پریشان ششدر سا تیزی سے ماریسا کی زخمی کلائی کا بہتا خون روکنا چاہتا تھا۔ وہیں رک جاؤ، ورنہ میں اب کی مرتبہ اپنی گردن پر چھری پھیر لوں گی، ماریسا نے بدستور سپاٹ اور سرد انداز میں کہا تھا، جس پر فوزان فوارے کا، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ وہ اتنی
सर फिरी थी कि ये भी कर गुजरती। क्या तुम पागल हो गई हो? इस तरह खून बहता रहा तो तुम मर जाओगी। फजान इसकी जख्मी कलाई को देखते बोला, जहाँ से खून तेज़ी से बहता हुआ फर्श पर गिर रहा था। मरती हो तो मर जाओ, मगर मेरे करीब आने की कोशिश हरगिज़ मत करना। मारिसा सत मौरी से कहती अपने सर झटकती इसकी आंखों के सामने तारीखी छाने लगी थी। पहले ही वो दिन भर की भूखी थी, थकावट ज़्यादा थी, मगर ख़ुद को मजबूर करती फौजान के सामने डटी रही थी। मगर अब इसकी ताकत, इसकी कुव्वत कमज़ोर पड़ने लगी थी और खून भी काफ़ी बह गया था। और फिर वो अपने जहन को तारीकी में डूबते हुए ना रोक पाई। इससे पहले कि वो फर्श पर गिरती, फौजान ने इसे आगे बढ़कर थामा था। तो तुम मोहब्बत की ग़ुलामी में आओगी मारिसा तकी? तो फिर ठीक है, मैं तो बस तुम्हें टूटता हुआ और बेबस देखना चाहता हूँ, अब चाहे वो ताकत के ज़रिए या मोहब्बत के। थोड़ी देर बाद ही फौजान बेड पर लेटी मारिसा की कलाई की ड्रेसिंग करता इसकी बंद पलकों को देख रहा था। कलाई की नस नहीं कटी थी, इसलिए इसे हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत नहीं थी और वो ख़ुद ही ड्रेसिंग कर रहा था। ये दूसरा वाक़या था जब वो मारिसा की ना चाहते हुए भी फ़िक्र कर रहा था, जो इससे बहुत ही नागवार गुजर रहा था। लगता है आप सभी के अंदर बहुत गुबार भरा हुआ है। क्या आप लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं? सत्वी ने संजीदगी से इन सब से पूछा था, जैसे खामोशी से कहता सुन रहे थे। कैसे भरोसा करें? आपने भरोसे के लायक अब तक कोई काम नहीं किया सिवाय फायर करने के। सीईओ मैन वह 32 साल का आदमी था जिसने नहायत कड़वे अंदाज में कहा था। सही कहा, जिस पर अक्सर ने तायीद की। आपका नाम मिस्टर अशरफ हुसैन? सत्वी के पूछने पर इसने मुंह बिगाड़ कर कहा, अशरफ हुसैन साहब, आज मैं आप सब के सारे शिकवे गिले ख़त्म कर दूंगी। तो चले, सबसे पहले हम एक गेम खेलेंगे। आपको अपने सामने टेबल पर बैलून नज़र आ रहे होंगे और साथ में एक पेन भी है। बैलून में आपको हवा भरनी है, जिसका बैलून आखिर तक बच जाएगा वो विनर होगा। सत्वी इस सब के चेहरे पर उभरते इस्तेज़ाइया अंगेज़ आसार को देखने के बावजूद कहती रही थी, हम यहाँ गेम खेलने नहीं आए। अशरफ हुसैन ने बिगड़ कर कहा था, अशरफ साहब, जो गेम में हिस्सा लेगा और जीतेगा, मैं इसे बोनस के तौर पर 3 महीने की सैलरी दूंगी। सत्वी अशरफ को देख मुस्कुरा कर कहती, सारे स्टाफ को देखा। सत्वी के कहने पर आपकी मर्तबा सभी ने एक दूसरे को देखा, जैसे जानना चाह रहे हो कि इनके साथियों के क्या इरादे हैं। सीईओ मैम, मैं जानता हूँ आप वैसी नहीं हैं जैसे लोग कह रहे हैं। आप तो बहुत मेहरबान और ज़हीन लेडी हैं। एक वर्कर अपनी दांत निकालकर अपने सामने टेबल पर मौजूद बैलून उठा गया। तुम सही कह रहे हो, इसके मुकाबले कहता वर्कर भी मुस्कुराता हुआ बैलून उठा गया। इन्हें देख सारे ने पहल कर ली थी। क्या बचपना है? हमारी सीईओ में बचपना भरा हुआ है और तुम सब भी ऐसे जैसा बनना चाहते हो, अशरफ हुसैन ने जहरीले लहजे में कहा था और साथ ही एक नागवार नज़र इन सभी वर्कर्स पर डाली जो बैलून फुलाने के लिए तैयार थे। और सत्वी के पीछे खड़ा अब्दुल रहमान ने तरहम भरी निगाह अशरफ हुसैन पर डाली थी, जो नहीं जानता था कि नर्मो नाजुक से नजर आती सीईओ आखिर में इसका बैंड बजाने वाली थी। अशरफ साहब, क्या आप गेम में हिस्सा नहीं लेंगे? 3 महीने की सैलरी कम तो नहीं होती? आप सबकी 1 महीने की सैलरी कम से कम 50,000 होगी। मैं कम से कम की बात कर रही हूँ, वरना हर किसी की सैलरी अपनी काबिलियत और पोजीशन के बिना पर मिलती है, जो यकीनन 50,000 से भी ज़्यादा है। तो चलें 50,000 ही पकड़ लें, तो 3 महीने की मिलाकर 1.5 लाख होती है। 1.5 लाख कम तो नहीं है ना अशरफ साहब? आपकी मर्तबा। सत्वी के कहने पर वो कुछ वर्कर्स जो अशरफ के साथ रुके हुए थे वो बैलून उठा गए, सिवाय अशरफ को छोड़कर, जिसे लग रहा था कि वो खुद को बहुत बड़ी मुश्किल से रोका हुआ हो। आप सबको मैं 3 सेकंड का टाइम देती हूँ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सत्वी के कहने की देर थी। वो सभी गुब्बारा फैलाने के बाद एक दूसरे के गुब्बारे पर हमला आवर हुए थे। हॉल का माहौल देखने के लायक हो गया था। शोर, हंगामा, चीखो पुकार। 3, 2, 1। सत्वी अपनी दाहिनी कलाई पर बंधी वॉच में देखती हुई कह रही थी, स्टॉप। सत्वी के कहने के साथ ही वॉच पे से नज़र उठाकर इन्हें देखा, जिनमें से किसी के हाथ में भी गुब्बारा मौजूद नहीं था। वो सभी एक दूसरे का गुब्बारा फोड़कर बिना गुब्बारे के खाली हाथ रह गए थे। किसी के पास नहीं बचा। नाइस। सत्वी इन सभी के लटके मुंह देख रही थी, कह रही थी, जो जूनियर बनकर 3 महीने की सैलरी, जो विनर बनकर 3 महीने की सैलरी जीतना चाहते थे। मैंने कहा था जिसके पास बचेगा वो विनर होगा। अगर आप में से हर एक के पास बैलून मौजूद होता तो आप सभी जीत जाते। आप सब विनर बनना चाहते हैं, लेकिन दूसरों को हराकर, सत्वी कह रही थी और सभी वर्कर्स के चेहरे पे पहले हैरानी छाई और अब वो सांस रोके इसे सुन रहे थे। इसे आपको 2 बातें सीखनी चाहिए। पहली ये कि एक अकेला प्लेयर कभी भी पूरी भी टीम को जिता नहीं सकता, और
रीज़न की वजह से कंपनी आगे नहीं बढ़ती, लेकिन अगर एक टीम जीती तो हर एक प्लेयर विनर होता है। वैसे ही अगर कोई कंपनी आगे बढ़ती है तो हर एक एम्प्लॉय कामयाब होता है। और दूसरी बात ये कि अपनों से कभी ना लड़ना, वरना हमेशा खाली हाथ रह जाओगे और तुम्हारा इत्तेहाद टूट जाएगा। लड़ना ही है तो एक साथ मुत्तहिद होकर इत्तेहाद तोड़ने वालों से लड़ो, क्योंकि हमारा इत्तेहाद ही हमारी ताकत है। हम सबको एक फैमिली जैसी हैं। फैमिली का मतलब होता है एक दूसरे से मोहब्बत करना और दूसरे की मदद करना। हम सभी की जीत एक साथ होकर मेहनत करने में है, क्योंकि अकेले में हम सब राई हैं, मगर सब मिलकर पहाड़ बनते हैं। उम्मीद है कि आप सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी और अब शिकायतें भी खत्म हो गई होंगी। सदफी इन सबके चेहरे को देखते हुए बोली, जो बहुत ज्यादा मुतासिर नजर आ रहे थे। सारे शिकवे शिकायत ढल कर इनके चेहरे पर इज्जत और एहतराम सिमट आया था। सदफी इनकी तारीफी कलमात सुने बगैर बाहर निकल गई थी, जो वो सदफी की शान में अब बढ़ चढ़ कर रहे थे। इसे वफादारी की किस्में खा रहे थे। अब्दुर्रहमान हैरत से दंग पड़ती हुई बाजी देख रहा था, और इन सब में से सबसे कमाल की बात ये थी कि उन्हें ये बात बुरी भी नहीं लगी थी कि वो सब इनाम से महरूम रह गए थे। मैम, आप बहुत जीनियस हैं। इतनी कम उम्र में इतना तजर्बा कैसे हासिल किया आपने? अब्दुर्रहमान बेपनाह मुतासिर हुआ इसके पीछे चलता हुआ कह रहा था। इसमें तजर्बे की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मेमोरी अच्छी होनी चाहिए। काफ़ी वक्त पहले व्हाट्सएप पर एक मैसेज पड़ा था, बस इसी को कॉपी किया और वर्कर्स पर पेस्ट कर दिया। सदफी लापरवाही से बोली। अब्दुर्रहमान इसे हैरत से दंग होते देख रहा था। जादूगर अमूमन अपनी ट्रिक्स नहीं बताया करते हैं कि ट्रिक्स बताने के बाद इनका चार्म खत्म हो जाएगा, मगर सदफी यूसुफ एक ऐसी जादूगर थी जो अपना ट्रिक बताकर मुतासरीन को मज़ीद सहर अंदेज कर देती थी। मुझे बताओ कि किसी लड़की के दिल में, वो भी ऐसी लड़की की जो बहुत ज़्यादा तेरी हो, इसके दिल में मोहब्बत जगाने के लिए क्या करना चाहिए? एक्चुअली मेरे दोस्त ने मुझसे ये सवाल किया था। फौजान और हमीद इस वक्त एवरीडे न्यू टीच कंपनी के 3rd फ्लोर में मौजूद कैंटीन के हॉल में बैठे अदनान का वेट कर रहे थे, जिसने इन दोनों को यहाँ बुलाया था। हमीद और फौजान पहले चले आए थे और अब फौजान इनसे मशवरा ले रहा था, जिस पर हमीद के मशकूक अंदाज में देखने पर वो फौरन बीच में अपने दोस्त का तड़का लगा गया था। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि मारिसा के दिल में अपनी मोहब्बत का बीज बोना चाहते हो? हमीद ने इसे छेड़ते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं है, फौजान साफ मना कर गया। खैर, जो भी है, सही बंदे से सवाल किया है जो आपका बेड़ा गर्क कर देगा। तभी सदफी हमीद की बात काटती इनके टेबल के गिर्द लगी एक कुर्सी घसीट कर बोली, जो चीज़ इसे आती ही नहीं वो इसे पूछ कर अपना बेड़ा गर्क क्यों करवाना चाहते हैं दामाद जी? सदफी कह रही थी, जिस पर हमीद ने बुरा सा मुंह बनाया था। अलबत्ता फौजान थोड़ा शर्मिंदा सा नजर आया था। मेरी मारिसा जितनी सख्त है इतनी ही तेज़ी से नरम मी और मोहब्बत से पिघल भी जाती है, आइसक्रीम की तरह, सदफी ने लहजे में प्यार समाते हुए कहा, जिस पर फौजान पहलू बदल कर रह गया। वो कोई वजाहत देता इससे पहले ही समीत बोल पड़ा था। तुमसे किसने कहा मोहब्बत करनी नहीं आती? मैंने हमना अरसलान से शदीद तरीन मोहब्बत करता हूँ। हमीद को सदफी का दिया इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं हुआ था, इसलिए डंके की चोट में अपनी मोहब्बत का इजहार कर गया। तुम्हें सारी दुनिया में बस वही लड़की मिली थी? सदफी निहायत ही बुरा सा मुंह बनाकर बोली। तुम जानते नहीं हो, ऐसी लड़कियां इंटरनेट के वायरस की तरह होती हैं, जो पहले तुम्हारी ज़िंदगी में घुस गई, फिर तुम्हारी जेब को स्कैन कर गई और इसके बाद तुम्हारे दिमाग को एडिट कर देगी, अपनी परेशानियों को डाउनलोड कर देगी, तुम्हारी मुस्कुराहट को डिलीट कर देगी। वो हमीद की तरह भरी निगाहों से देखती समझाने की कोशिश कर रही थी। यार अदनान, क्या तुम्हारे साथ भी यही हुआ है जो सदफी तुम्हारी ज़िंदगी में दाखिल हुई थी? हमीद सदफी के पीछे देखता हुआ शरारत से पूछ रहा था। कहाँ है अदनान? सदफी सारा टॉपिक भूलती गर्दन मोड़कर अदनान को देखने लगी, जो इसके बाजू की सीट घसीट कर बैठ रहा था। सही कहा, ये सब बहु हुआ है मेरे साथ, अदनान के संजीदा अंदाज में कहते सदफी बुरी तरह झुलस उठी। इसकी प्यारी हमना को कहा है ना मैंने, इसलिए ये ऐसा कह रहा है, वरना आज तक तुमने मुझे मुंह दिखाई भी नहीं दी। सदफी चेयर धकेल कर उठती हुई तब कर बोली थी, या अल्लाह, इतने लोग गर्मी में मर रहे हैं, क्या ये एक मेजर खड़ूस तकी मुझ पर नहीं मर सकता? फिर बताती मैं इसे। सदफी पैर पटक कर कहती हुई वहाँ से गई थी, जिसे सुनकर अदनान खफीफ सा हुआ था, क्योंकि फौजान और हमीद शरारती नज़र से इसे देख रहे थे। शट अप, कुछ उल्टा पुल्टा कहा तो मैं यहाँ तुम दोनों को कुछ बताने के लिए बुलाया है। अदनान मुंह खोलते हमीद को पहले ही चिढ़क गया था, जिस पर हमीद मुंह बनाकर रह गया। कौन सी खास बात? फौजान ने अदनान को बगौर देखते हुए पूछा।
یہ لیٹر مجھے محمد خان کے گھر میں ملا تھا۔ اس پہ انگلیوں کے نشانات ہیں جسے حاصل کرنے کے لیے میں نے اسے فورینسک لیب میں بھجوایا تھا، اور یہ والا دوسرا لیٹر ہے اس شخص نے بھیجا تھا جو بھائی جان کو بلیک میل کر رہا تھا اور یہ دریشیلا کو اغوا کیا۔ عدنان دونوں بھی خط لفافے سمیت ٹیبل پر رکھ رہا تھا۔ امیزنگ، یہ دونوں لفافے تو سیم ہیں۔ فوزان کے چہرے پر تحیر بھرے تاثرات ابھرے تھے کیونکہ وہ لفافے عام لفافوں سے بہت مختلف تھے۔ صحیح کہا، دونوں سیم لفافوں سے سمجھ آتا ہے کہ جو کوئی بھی شخص ہے وہ کامن ہے۔ اور جانتے ہو، محمد خان کے گھر سے جو لفافہ ملا اس پر تاریخ بہت پرانی ہے، اس وقت کی جب ان کے پیرنٹس کے ساتھ حادثہ ہوا تھا۔ عدنان ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، یعنی اس وقت کے حادثے میں اور اس وقت حادثے میں کوئی ایک ہی شخص جڑا ہوا ہے۔ حمید نے تھوڑی پہ ہاتھ رکھ کر کہا، ہاں، اگر ہم یہ جاننا ہے کہ آرس ٹکی اور یلی کے حادثے کا کون ذمہ دار ہے تو ہمیں محمد خان کے معاملے کو انویسٹیگیٹ کرنا ہوگا، اس سے ہمیں کلو ملے گا جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ عدنان کہہ رہا تھا جس پر وہ دونوں بغور سن رہے تھے، مگر دریشیلا کے معاملے میں تو بلیک ڈیول سامنے آیا تھا نا، جس نے اپنی ذاتی دشمنی کے سبب دریشیلا کو اغوا کیا تھا۔ فوزان نے کہا، نہیں، بلیک ڈیول عرف محمد خان صرف ایک مورا تھا، اصل شخص تو کوئی اور ہے۔ عدنان نے یقین سے کہا، وہ اصل شخص کون ہے؟ حمید نے پوچھا، جس کے جواب میں فی الحال وہ لا علم تھے۔ کیا چاہیے تمہیں؟ ہینسم پرل نے اپنے سامنے بیٹھے ڈارک بلو کلر کے فارمل سوٹ میں ملبوس شخص سے پوچھا، جس نے اپنا بلو جیکٹ اتار کر بازو پر ڈالا ہوا تھا۔ وائٹ شرٹ اور ٹائی میں وہ خاصا ہینسم اور اسمارٹ اور اسٹائلش نظر آ رہا تھا۔ مجھے ان پیپرز پر سگنیچر چاہیے، اور یہ رہی تقی فیملی کی پروفائل۔ اور ایک فائل پرل کے سامنے پھینکتے ہوئے کہہ رہا تھا، اس میں سے جسے جیسے چاہے استعمال کر اس فائل پر دستخط کرواؤ۔ وہ پرل کو دیکھتا کہہ رہا تھا، جو فائل میں موجود تقی فیملی کی پروفائل دیکھ رہی تھی۔ تم جانتے ہو نا میری فیس کتنی ہے؟ پرل نے اسے پوچھا۔ تو بس میرا کام کر دو، تمہیں منہ مانگی قیمت دوں گا۔ اوہ ریئلی؟ پرل اس کے کہنے پر دلچسپی سے مسکرائی تھی، اور پھر فائل میں دیکھتے ایک پروفائل پر اس کی نگاہ گئی تھی۔ لبوں سے مسکراہٹ سمٹی، آنکھوں میں انگارے ابھر آئے۔ تو یہ تقی فیملی سے تعلق رکھتی ہے، میں تمہارا کام ضرور کروں گی مسٹر۔ پرل طیش اور مضبوطی سے کہتے ہوئے رک کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتے جیسے اس کا نام جاننا چاہ رہی ہو۔ نام میں کیا رکھا ہے، بس کام اچھے سے کرو اور منہ مانگی قیمت لو، وہ کہہ کر وہاں سے اٹھ گیا۔ اس شخص کی انفارمیشن نکالو۔ پرل اس کے پش کو دیکھتے ہوئے اپنے پاس کھڑے آدمی سے بولی، یس میم۔ تمہیں میرا نمبر کہاں سے ملا لٹل گرل؟ مارگو اپنے سامنے بیٹھی دریشیلا کے حجاب سے جھانکتی براؤنش آنکھوں کو دیکھتی تحیر سے بول رہی تھی، وہ آپ نے ایک مرتبہ میرے سامنے اپنا نمبر دہرایا تھا اور تمہیں یاد رہ گیا؟ مارگو نے تحیر سے کہا، وہ دراصل میری میموری خالہ جانی جتنی اسٹرانگ ہے، اس لیے جو بھی سنتی یا دیکھتی ہوں وہ یاد رہ جاتا ہے۔ دریشیلا اپنی اصلی معصومیت سے کہہ رہی تھی، او یعنی فوٹوگرافک میموری۔ مارگو بہت متاثر ہوئی تھی۔ آپ ہی میں آپ کی ہیلپ چاہیے، اس لیے میں نے آپ کو بلایا ہے۔ دریشیلا مارگو کے کسی بات پر کمنٹ کیے بغیر اس کے اسکارف سے چھپے چہرے کو دیکھتی ہوئی بولی، ہاں بولو لٹل گرل، میں تمہاری مدد خوشی سے کروں گی۔ مارگو نے کہا، جس ریسٹورینٹ میں وہ دونوں بیٹھے تھے وہ گلاس وال سے بنا تھا۔ وہ اس بات سے قطعی بے خبر تھے کہ باہر کھڑا شخص انہیں دیکھ رہا تھا وہ کوئی اور نہیں بلیک ڈیول تھا۔ وہ سارا دن دریشیلا کا پیچھا کرتا رہتا تھا، اور اب ریسٹورینٹ کے باہر کھڑا گلاس وال سے ان کی یک تک بے خودی کی کیفیت میں تک رہا تھا۔ جب ہی وہ اپنے نام پر چونکا، وہ نام جیسے وہ چھوڑ چکا تھا، ڈاکٹر محمد خان۔ اس نے چونک کر گردن موڑ کر دیکھا جہاں اس کی کولیگ ہادیہ جان عالم کھڑی سے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے آپ کو 3 سال سے کہاں نہیں ڈھونڈا ڈاکٹر صاحب، میں محمد نہیں ہوں۔ وہ صدمے سے کہتا جانے کے لیے پلٹا تھا کہ ہادیہ کی اگلی بات پر اس کے قدم رکے تھے۔ مجھے آپ کو بتانا تھا کہ آپ کی ماما کی ڈیتھ نیچرل نہیں تھی، انہیں زہر دے کر مارا گیا تھا۔ بلیک ڈیول کو لگا جیسے زمین نے گردش کرنا روک دیا ہو، ماحول میں آکسیجن ختم ہو گیا ہو۔ اس نے بے یقینی سے پلٹ کر ہادیہ کو دیکھا تھا۔ 10:59 AM بدھ۔ ابھی سازش کا موسم ہے، ابھی عشق مت کرنا، ابھی آندھی کا چر چاہیں، ابھی تم ریت جیسے ہو۔ تم نے اگر اپنی ناپاک زبان سے میری بہن کا نام ایک اور مرتبہ بھی لیا تو وہ خشے کروں گی کہ دنیا یاد رکھے گی، گھٹیا انسان۔ بدقسمتی سے تمہاری بہن اس گھٹیا انسان کی بیوی ہے، سو اس گھٹیا انسان کا تمہاری بہن کا نام لینے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بلیک ڈیول کو مریسا کے چہرے پر چھاتی ڈر کی سفیدی بڑی پسند آئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں بات کا یقین کر لوں گی؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ دوبارہ گھٹیا انسان، مذاق بھی نہ کرنا اس طرح کا، میں تمہاری جان لے لوں گی۔ مریسا پورے یقین سے
तज़हीफ़ भरे अंदाज में कह रही थी। अपने पॉकेट से लेडी गन निकालती ब्लैक डेविल की पेशानी के सीध में तानते हुए बोली, यकीन मैं नहीं दिलाऊंगा तुम्हें, तुम्हारी बहन दिलाएगी कि ये घटिया इंसान बल्कि तल्ख हकीकत है। ब्लैक डेविल के लहजे से झांकता यकीन और मजबूती मारिसा को खौफजदा कर गई। मारिसा ने गर्दन ऊंची किए मुड़ कर बड़ी उम्मीद से दुरेयाला को देखा, जो रेलिंग पकड़े खड़े नीचे ही इन दोनों को देख रही थी, जिसका चेहरा खौफ से पीला पड़ता नजर आ रहा था। अब से 18 घंटे पहले 5:05 शाम मंगल। 18 घंटे पहले डॉक्टर मोहम्मद खान, मैंने आपको 3 साल से कहाँ नहीं ढूंढा। मैं मोहम्मद नहीं हूँ, वो सरमौरी से कहता हुआ पलटा था। मैंने आपको बताना था कि आपकी मम्मा की डेथ नेचुरल नहीं थी, इन्हें जहर दिया गया था। ब्लैक डेविल को लगा जैसे ज़मीन ने गर्दिश करना रोक दी हो, माहौल में ऑक्सीजन ख़त्म हो गया हो। इसने बेयकीनी से पलटकर हादिया को देखा था। ये क्या बकवास है, इन्हें भी सदमे के सबब हार्ट अटैक आया था। वो हादिया जान आलम तक जाता गुराते हुए बोला था, जिस पर हादिया सहम का बेयकीनी से इसे देख रही थी, जो एकदम बदला नजर आ रहा था। नरम और धीमे लहजे में बात करता वो डॉक्टर मोहम्मद खान कतई नहीं लग रहा था। आपसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट छुपाई गई थी और आप इतने सदमे में थे कि आपने तहकीक भी नहीं की। इत्तेफाक से असली रिपोर्ट मेरे हाथ लग गई थी, हादिया खौफ ज़दा सी कह रही थी। ऐसा कौन कर सकता है? ब्लैक डेविल का दिल भर गम से भरा हुआ था, इसे यकीन नहीं आ रहा था। बेटा, मुझसे कभी बदगुमान मत होना। नूरजहां की आवाज़ इसके समात में गूंजी थी। इसके सबब इसने दुख और कर्ब से आंखें मींची। इसे लगने लगा जैसे इसने अभी एक मर्तबा फिर से अपनी माँ को खो दिया हो। अब मारिसा तकी से पूछें, शायद कि कुछ पता चल जाए, शायद वो भी इसमें इन्वॉल्व थी, हादिया ने कहा था, जिसे सुनकर इसकी आंखें गुस्से और नफरत से देखी थी। मारिसा तकी। 8:30 रात 14.5 घंटे पहले मंगल। मारिसा घूमते सर को थामती बिस्तर से उठ गई थी। खून ज़्यादा बहने की वजह से इसे कमज़ोरी हो रही थी। पता नहीं कैसे वो आज सारा दिन सोई रही थी। यकीन फौजान ने इसके नींद की दवाई कॉफ़ी या पानी में घोल कर दी थी। इसने अपने किलाई पे बंदी सफ़ेद पट्टी देखकर सोचा था। वॉशरूम से फ्रेश होकर निकलने पर इसे बाहर से हंसी और बातों की आवाज़ आई थी, जिसमें फौजान की आवाज़ भी शामिल थी। इसने हैरत से दीवार की घड़ी की जानिब देखा। वो हैरान हुई कि फौजान इतनी जल्दी घर कैसे आ गया, वरना वो अमूमन रात के 1-1:30 बजे तक आता था। कॉफ़ी की तलब इसे किचन की जानिब ले गई थी, जहाँ किचन में इसे हसीना बेगम और हानिया के साथ बैठा फौजान डिनर करता नजर आया था। इसे देख वो लम्हे भर के लिए खामोश हुए थे। मैं भी तुम्हारे लिए सूप लेकर ही आ रहा था, फौजान मुस्कुराते हुए बोला, जिस पर मारिसा मशकूक हुई। क्या वो अपनी फूफी के सामने अच्छा होने का ड्रामा कर रहा था? अलबत्ता वो सर झटकती कॉफ़ी मेकर की जानिब बढ़ गई थी। तुम क्यों सूप लेकर जाओगे? क्या तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ बैठ कर खाना नहीं खा सकती? हसीना ने नागवारी से कहा था। नहीं फूफी, दरअसल बात यह कि मारिसा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए, फौजान ने वजाहत दी। क्या हुआ है तुम्हारी बीवी को? सकीना बेगम ने हानिया को मायने केस नज़रों से देखा था। बस इसे कमज़ोरी हो रही है, फौजान ने जवाब दिया, और इनकी बातों से यकसा लापरवाह सा मारिसा कॉफ़ी का मग लिए कमरे में वापस जाने के लिए पलटी थी। मारिसा, मुझे भी कॉफ़ी पीना है। अगले ही पल हानिया ने उठकर मारिसा के हाथ से मग छीनने की कोशिश की। मारिसा की कमज़ोर पकड़ थी। जब भी मग हल्का सा ऊपर उछला और तिरछा होता, मारिसा के दाहिने हाथ पर गरम गरम कॉफ़ी गिराता ज़मीन बोस होकर जुन्नाके से घिरा था। ये क्या कर दिया तुमने हानिया? फौजान हानिया को बुरी तरह झड़का। तुम्हें लगी तो नहीं? फौजान फौरन चेयर पर इसे उठा इस तक आया था, जो सदमे के सबब टूटे मग को देख रही थी। वो कॉफ़ी लवर थी, इसलिए इसे कॉफ़ी मेकर काफ़ी पसंद थे, और ये वाला मग इसका 3 साल पुराना फेवरेट मग था। मारिसा ने सर उठाकर खूंखार नज़र से हानिया को देखा, जो फौजान की झिड़कने पर सहमी से रोहानसी हुई थी। तुम्हारा हाथ तो बुरी तरह जल गया है। मारिसा की सुर्ख होता हाथ देखा था थामता वो परेशानी से बोला था, जिस पर मारिसा फौजान की जानिब मुतवज्जा हुई। तुम्हारा दिल तो नहीं जलाना? मारिसा गुस्सा और नागवारी से कहती। इसका हाथ झटक गई। क्या पता जल ही गया हो, वो धीमे लहजे में कहता। दोबारा इसका हाथ थाम गया था, जिसमें मारिसा ने हैरत से इसे देखा था। वो काफ़ी देर से फौजान का लहजा नोट करी थी, जो बदला हुआ था। हसीना बेगम सदमे से आंखें फाड़े फौजान को फिक्रमंदी से मारिसा का हाथ थामे ले जाता देख रही थी। तो तुम कह रही थी कि इनके दरमियान ज़ोरदार जंग हुई है, मगर यहाँ तो वो मजनू बनाए सफ़ेद चुड़ैल को ले गया। हसीना बेगम जलकर कहती। हानिया को देखें, जो खुद हैरान नजर आई थी। मैं इन्हें नहीं जानती अम्मा कि क्या हो रहा है। हानिया अब की मरतबा बुरा सा मुँह बनाकर बोली थी। ये क्या हो रहा है? हाथ मेरा जला है तो तुम क्यों मरे जा रहे हो? मारिसा इसे उलझे नज़रों से देखती गुस्सैले अंदाज में पूछने लगी। मैं मरना तो तुम्हें चाहता
हूँ, वो भी बेमौत। मारिसा की हथेली के पुष्ट पे पर ना लगाते वो सर उठाकर इसे देखा। सिर्फ दिल में सोच पाया था, इसे इंसानियत कहते हैं गालिबन। अपने गुस्से पर जब्त करी बांधता वो नरमी से बोला था, और तुम्हारी इंसानियत इस वक्त कहाँ जाके सोई थी जब तुमने मुझे दिन भर भूखा कमरे में बंद रखा था। मारिसा का तीखा लब, वो लहजा अब की मरतबा फौजान का सारा जब्त बहा ले गया था और सारे प्लान पे पानी फिर गया। तुम जैसी हद से ज्यादा बिगड़ी हुई लड़कियों को इस तरह सीधारने के लिए डोज देना इंसानियत के खिलाफ नहीं होता है। ओ अच्छा, मारिसा ने मुस्कुराते हुए इसे देखकर कहा था। इसकी इस्तज़ाई अंगेज मुस्कुराहट फौजान को मजीद आग लगा गई थी। तुम सख्त जहर लगती हो मुझे। फौजान अब भुना कर कहता बाहर जाने के लिए दरवाजे की जाने बढ़ा था। ये शायद फौजान का पसंदीदा जुमला था। दिन में 2-3 मरतबा तो इसके मुंह पर सुन चुकी थी। अगर मैं तुम्हें जहर लगी तो मुझे खाकर मर जाओ। मारिसा मज़े से कहती हुई सोफे से उठ खड़ी हुई साइड टेबल की जाने बढ़ी। वो साइड टेबल पर पड़ा अपना सेल फोन लेना चाहती थी ताकि सतफी और दुरिजेला से बात कर सके, इसलिए वो फौजान को देख ही नहीं पाई जो वापस इसकी जाने पलटा था। वो अपना सेल फोन लेकर पलटी तो यकदम पीछे फौजान को खड़ा देख घबरा कर पीछे हटी थी। इसकी पीठ टेबल से लगी थी। तो तुम मुझे इजाज़त दे रही हो कि मैं तुम्हें खा जाऊं? फौजान की धीमी पुरतपिश मायने खेज लहजे पर मारिसा के अंदर जैसे करंट दौड़ा था। इससे पहले ही मैं तुम्हें कच्चा निकल जाऊंगी। अपनी कमजोरी इस पर जाहिर किए बगैर वो खा जाने वाली नजर से घूरती अपने सामने से धक्का देकर हटती हुई सोफे पर जा बैठी थी और फौजान अपने लबों पर मुस्कुराहट दबाता ऐसे गहरी नजर से दिखता कमरे से बाहर निकल गया। मारिसा ने हजार चाहा था अपनी कमजोरी छुपाने की, मगर वो मारिसा का घबरा जाना पकड़ गया था। वो जान गया था कि बेहद मजबूत बहादुर नजर आती मारिसा की कमजोरी मोहब्बत थी, इसलिए वो चाहती थी कि फौजान इसे नफरत करता रहे। फौजान के लबों पर फातिहाना तहज़ानगेज़ मुस्कुराहट दौड़ी थी। मारिसा तहकीक ज़ेर होने का वक्त अब करीब ही था। 12:55 सुबह बुध 55 AM बुध रात 10 घंटे पहले। क्या अभी तक तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ? कमरे में दाखिल होते अदनान ने हैरत से सतवी को देखते पूछा। वो सतवी को शाम 6 बजे से लैपटॉप के सामने बिजी देख रहा था, जो अभी बदस्तूर सोफे की पुश पर टेक लगाए पैरों को ऊपर किए लैपटॉप को गोद में रखी कुशन के ऊपर रखे इस पर बिजी थी। साथ ही सेंट्रल टेबल पर रखा इसका सेलफोन का स्क्रीन भी रोशन था, जो बता रहा था कि वो लैपटॉप के साथ साथ सेलफोन पर भी बिजी थी। हाँ, बस कंपनी के फ्रॉड को पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ। सतवी ने थके थके लहजे में ज़रा अपनी गोल ब्लैक फ्रेम का चश्मा सर सुर्ख होती आंखें उठाकर अदनान को देखा था, जिस पर इसने नजरें लैपटॉप पर गड़ गई थी। अदनान दरवाजे से ही उल्टे कदमों वापस आ गया था। थोड़ी देर बाद ही सतवी के नाक से हॉट चॉकलेट की दिलफरेब खुशबू टकराई, जो अदनान इसके सामने बड़े सेंटर टेबल पर रख गया था। ओ, सतवी लैपटॉप ऑफ करती पैर सोफे से नीचे किए गूगल आंखों पर से निकाल कर फोल्ड करके टेबल पर रखती, फौरन हॉट चॉकलेट के मग को नाक से करीब किए आंखें बंद करके एक लंबी सांस लेती हॉट चॉकलेट की खुशबू अपने अंदर उतार रही थी। इसे हॉट चॉकलेट, आइसक्रीम और हॉट चॉकलेट बेहद पसंद थे। शुक्रिया मेरी स्वीट तकी। सतवी ने हॉट चॉकलेट का घूंट लेते हुए फौरन कहा था। वो कभी कभी ही इस पर मेहरबान होता था, और जब होता था तो सतवी के लिए खड़ू से स्वीट बन जाता था। अदनान इसे देख मुस्कुराते हुए चेंजिंग रूम में पड़ गया था। अदनान, मैं कल बिजनेस के सिलसिले में सुबह सुबह ही आउट ऑफ सिटी के लिए निकल जाऊंगी और फिर मेरी वापसी रात गए तक होगी। सतवी ने बैठ के जाने बढ़ते अदनान को कहा। जानता हूँ, ब्लैंकेट हुड पर फैलाते अदनान ने लापरवाही से क्या कहा था बस इतना ही और कुछ नहीं। कल दिन भर वो इसकी निगाहों से ओझल रहने वाली थी, मगर इसे तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना था। सोच गई सतवी बुरी तरह भुनाई थी। वो ये ना कहता कि वो भी इसके साथ चला जाएगा, मगर यादगार के तौर पर इसके साथ ही रहेगा। अलबत्ता अपनी सोच पर ही सतवी का चेहरा सुर्ख हुआ था। अगर अदनान ने ऐसा कहा तो वो कर देगी। लड़कियां यूं भी सब चीज़ों में आगे बढ़ गई हैं। अब रोमांस की पहल करने में भी आगे बढ़ गई तो कोई तूफान तो नहीं आ जाएगा। खुद को हिम्मत दिलाते वो सोफे पर से उठ खड़ी हुई थी। वो लरसते कदमों से आंखों पर बाजू रखे सोए अदनान के करीब गई थी और निहायत धीरे से इसके चेहरे के करीब झुकी। अदनान की आंखों और पेशानी पर बाजू रखने की वजह से इसकी सिर्फ खड़ी मगरूर सी नाक, अनाबी सुर्ख माइल ब्राउन
लब नज़र आ रहे थे, जिसे देख सतफी की हार्ट बीट बहुत तेज़ हुई थी। इतनी बड़ी थी कि इसके आवाज़ शायद नान तक भी जा पहुंची थी, जिसके सबब इसने अगले ही पल आंखों पर से बाजू हटा लिया था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अदनान ने बेसाख्ता हैरत से पूछा। अदनान के अचानक देखने पर सतफी के मुंह से बौखला कर निकला था। व्हाट? जिस पर अदनान होश में आया था। मेरा मतलब है कि सतफी सीधी खड़ी हुई थी, बौखला कर बात संभालने की कोशिश कर रही थी। ये मोहब्बतों के सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं, मिस भी, केयर भी, लव भी। तो सोचा कि जब इतना सारा काम मैं ही कर रही हूँ तो एक और काम कर लेती हूँ। सतफी नज़रें झुकाए शर्माते हुए कह रही थी। रेली? सतफी अपनी हंसी रोकने की कोशिश करता अदनान अगले ही पल ज़ोर से हंस पड़ा था। तुम मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ा रहे हो? सतफी को तो बड़े गुस्सा आया था। तुम मोहब्बत भी अगर जोक जैसा करोगी तो हंसी आएगी ना? अदनान मुस्कुराहट दबाए संजीदा होते हुए बोला था। एक तो खुद को तौफीक नहीं होती मोहब्बत करने की, मैं कर रही हूँ तो हंसी आ रही है। सतफी गुस्से से कहती बेड पर इसके बाएं जानिब तकिया लेकर तकिए पर गिरी। इसका क्या मतलब? अदनान संजीदा होते बोला। जिसे बेड शेयर करने पर मसला हो वो सोफे पर जाकर सोए, मुझे तो कोई मसला नहीं है। सतफी उठ कर बैठती हुए अदनान की आंखें चैलेंजेस भरे अंदाज में कहती हुई बोली। दोनों कई लम्हे तक बिना पलक झपके एक दूसरे को देख रहे थे। ठीक है। अगले पर अदनान घुटने टिकाता तकिए पर सर रख कर दाहिना हाथ बाजू पर रख गया था। ये क्या? इतनी खूबसूरत हूर जैसी बीवी पहलू में मौजूद होते हुए तुम इतने आराम से कैसे सो सकते हो? खड़ूस तकी सतफी को जैसे सदमा हुआ था, मगर अगले ही पल सतफी हिम्मत करती अदनान का दाहिना बाजू सीधा करती इस पर सर टिका गई थी, जिसे महसूस करके अदनान की जैसे सांसें रुकी थी। अदनान के बाएं पहलू जल उठा, दिल अलग से सीने में धड़क कर को हराम मचाने लगा। अदनान के सो गए हो? इसे कतई अनजान सतफी ने इसकी जानिब करवट लिए इसकी खड़ी नाक देखते हुए पुकारा था। नहीं। अदनान के हलक से बड़ी मुश्किल से आवाज़ निकली। जानते हो कल मेरा टीवी इंटरव्यू भी है। इंटरव्यू में अगर मुझसे पूछा जाएगा कि आप किससे मोहब्बत करती हैं सतफी यूसुफ, तो मैं कहूँगी मिर्जा अदनान तकी से। सतफी नहायत जोशो खरोश से कह रही थी। इसका ढिंडोरा तो तुमने पहले ही सबके सामने पीट रखा है, यकीनन पूरा शहर जानता होगा। मगर इस बात को अदनान की धीमी सी आवाज़ सतफी तक आई थी। इसकी नज़रें अदनान की नाक पर से हट कर इसके लबों पर रुकी थी। मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया जाने कि अदनान तकी सिर्फ मेरा है। सतफी के लहजे में महसूस करने जाने वाली तपिश और जुनून था, जैसे महसूस करके अदनान ने आंखों पर से बाजू हटाकर गर्दन मोड़ कर सतफी को देखा, जो अदनान को अपनी जानिब यक तक देखता घबरा गई थी। ऐसे क्या देख रहे हो? नज़रें फ़ौरन इसकी शर्म से झुकी। इसके कान अदनान के मुंह से कोई रोमांटिक जुमला सुनने के लिए बेकरार थे। ये देख रहा हूँ कि तुम्हारी ज़ुबान कितनी चलती है। अदनान का नॉन रोमांटिक जुमला सुनकर सतफी बुरी तरह झुलस उठी। मर्द हसरात गाड़ी चलाएं, बाइक चलाएं, जहाज़ चलाएं, मुल्क चलाएं और हम लड़के एक ज़ुबान भी ना चलाएं। सतफी ने जल कर कहा। बिल्कुल ज़ुबान चलाओ, मगर मैं अपने कान पर अब मज़ीद ज़ुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं जा रहा हूँ सोफ़े पर। अदनान कहता इसके नीचे से हाथ निकालता खींच गया था और तकिया लिए सोफ़े पर की जानिब बढ़ गया। सतफी नाराज़गी से अदनान का पुश्त देखती हुई फिर नाराज़गी से मुँह बसोर कर तकिए पर सर पटक कर अदनान की जानिब से मुँह मोड़ गई थी। अदनान सोफ़े पर तकिया सेट करता गर्दन मोड़कर सतफी की पुश्त को देखने लगा। इसकी आंखों में कर्ब डर आया था। सतफी की दीवानगी भरी मोहब्बत हमेशा इसे कमज़ोर कर देती थी। वो अपने इरादे से भटक जाता था, मगर अब इसे इरादे से कतई नहीं भटकना था। सतफी की मोहब्बत के लिए नहीं, बल्कि अपनी मोहब्बत के लिए। इसने हमेशा की तरह खुद को याद दिलाया, मगर वो जानता था कि सतफी की दीवानगी के सामने वो हमेशा की तरह भूल भी जाएगा। 10:59 AM बुध। आज सुबह ही इसने से मौसम अबर आलूद हो रहा था। सूरज आसमान पर हल्की सी तपिश लिए चमक रहा था, जिसके सबब माहौल बहुत ही खूबसूरत हो रहा था, क्योंकि सूरज साहब बड़े मूड में स्याह बादलों के लिए लुका छुपी हाइड एंड सीक खेल रहे थे। ऐसे ही हमेशा की तरह माँ सीमा महल अपनी पूरी आबोशान और मगरूर अंदाज में खड़ी थी। माँ सीमा के अंदर निचली मंजिल पर ब्रेकफास्ट की हलचल मचकर ख़त्म हुए 1.5 घंटा हो चुका था, क्योंकि सारे मर्द हज़रात ब्रेकफास्ट करके ऑफिस सुधार गए थे। माँ सीमा में सिर्फ औरतें रह गई थीं, जो सुस्ती से
का नाश्ता कर रही थी। ऐसे में दूसरी मंजिल पर दुर्योला के कमरे में सिर्फ दुर्योला और मारिसा थी। सतफी सुबह सुबह ही ऑफिस के काम के सिलसिले में आउट ऑफ सिटी के लिए निकल गई थी। अदनान भी सतफी के साथ ही मासीमा से निकला था। दुर्योला के तन्हाई के ख्याल से मारिसा ऑफिस का सारा काम उठाकर मासीमा चली आई थी। दुर्योला और मार्सिया बातों में मसरूफ थी कि नीचे से आती ऊपर आवाज़ पर वो हैरान हो गई थी। खामोश हुई। कोई दुर्योला को बिना रुके पुकारे जा रहा था। कौन बदतमीज़ है? मार्सिया गुस्से में आती कमरे से बाहर निकली थी। मार्सिया के पीछे ही खौफ से धड़कते दिल के साथ दुर्योला भी निकली। रेलिंग से नीचे झांकती मारिसा ब्लैक डेविल को देख हैरान से दंग हुई थी। क्यों आए हो यहाँ? अगले ही पल शोराबार ज्वाला बनती सीढ़ियों से धड़ उतरती लम्हों में इस तक पहुँची थी दुर्योला से मिलने। ब्लैक डेविल ने बज़ाहिर इत्मीनान से कहा था, मगर एक इसकी आंखों में भड़कती आग साफ बताई थी कि वो कतई मुतमईन नहीं था। तुमने अपनी नापाक जुबान से मेरी बहन का नाम एक और मरतबा लिया तो मैं तुम्हारा वो हशर करूँगी कि सारी दुनिया देखेगी। घटिया इंसान, बदकिस्मती से मैं तुम्हारी घटिया इंसान तुम्हारी इस बहन का शौहर है, तो इस घटिया इंसान को तुम्हारी बहन से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ब्लैक डेविल ने सच से अंदाज में कहा था। इस पे मारिसा के चेहरे पर तेजी से छाती खौफ की सफ़ेदी बड़ी पसंद आई थी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इस बात पे यकीन कर लूँगी? और ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर दोबारा ऐसा घटिया मजाक किया ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। मारिसा पूरे यकीन से तहसीब भरे अंदाज में कहती अपनी पॉकेट से लेडी गन निकालती ब्लैक डेविल की पेशानी की सीन में तानते हुए बोली, यकीन मैं नहीं दिलाऊंगा तुम्हें। यकीन तो तुम्हें तुम्हारी बहन दिलाएगी कि ये घटिया इंसान मजाक नहीं तलख हकीकत बता रहा है। ब्लैक डेविल के लहजे से झांकता यकीन और मजबूती मारिसा को खौफजदा कर रही थी। मारिसा ने गर्दन ऊंची किए मोड़ कर बड़ी उम्मीद से दुर्योला को देखा, जो रेलिंग के पीछे खड़ी नीचे ही इन दोनों को देख रही थी, जिसका चेहरा खौफ से पीला पड़ रहा था। यकीन मैं नहीं दिलाऊंगा तुम्हें, यकीन तो तुम्हारी बहन दिलाएगी। दुर्योला, इससे कह दो कि ये अपना झूठ लेकर यहाँ से दफा हो जाए। अब ये सच है। दुर्योला नफ़ी में सर हिलाती आंसू बरसाती आंखों से बोली थी, जिसके आवाज़ हलक से बाहर नहीं निकल रही थी। मगर मार्सिया दुर्योला की लबों की जुम्बिश से सब बढ़ गई थी और ये इंकशाफ के ब्लैक डेविल सच कह रहा था। इस पर बिजली बंद कर गिरा था। सिर्फ मार्सिया पर ही नहीं, वहाँ मौजूद निचले हिस्से में बेबसी औरतें हैरत से दंग होती दुर्योला को देख रही थी। आप ही दुर्योला रसती हुई सीढ़ियाँ उतरकर मारिसा के करीब आई थी, जो बेयकीनी से बर्फ़ का मुजस्मा बनी दुर्योला को देख रही थी। मुझे माफ़ कर दिया आप ही, मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि दुर्योला रोती हुई मारिसा को वजाहत दे रही थी, क्योंकि इसने मुझे धमकी दी थी कि जिससे ये मरा हुआ देखना चाहती वो इससे अपनी सारी बातें शेयर कर सकती हैं। डेविल दुर्योला की बात काटता साथ ही आगे बढ़कर दुर्योला की बाजू घसीट कर ले जाने लगा था। आप ही दुर्योला साकित से मारिसा को देख मचली थी। कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो इसे। मारिसा के साकित वजूद में जुम्बिश हुई। अगर मुझे रोकने की कोशिश की तो तुम्हारी बहन को जान से मार दूंगा मैं। ब्लैक डेविल बेरहमी से कहता अपने दाहिने हाथ से दुर्योला की गर्दन दबोच गया था। नहीं, मारिसा की सांसें थमी थी। अगर अपनी बहन को जिंदा देखना चाहती हो तो बिना रुकावट बने मुझे ले जाने दो और मेरे सवालात के जवाब देकर अपनी बहन को ले जाओ। ब्लैक डेविल सरनोरी से कहता दुर्योला की गर्दन छोड़ता घसीटता ले जाने लगा था। अभी दुर्योला बेबसी सी मारिसा को देखते हुए रोती हुई पुकार रही थी, जिस पर मारिसा तड़पते मचलते दिल के साथ बेबस खड़ी रह गई थी। मैम, अब आपका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, सवालों की लिस्ट है। अंकल ने ठीक है चलो। अब्दुर्रहमान के हाथ से कागज़ की फहरिस्त थामकर इस पर नज़रें दौड़ाती हुई बोली थी और वो अभी अपनी मीटिंग ख़त्म करके निकली थी। मैम, अब्दुर्रहमान कार का पिछला ड्रॉनलॉक करता कॉफ़ी मग इसे थमा गया। जज़ाकल्लाह। सतफी बदस्तूर फहरिस्त पर निगाह जमाए मग थामते हुए बोली थी। ओके जी, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।